ہمارا آخری سوال ویور سے ہمارا یہ رہا کہ جو ہندوستان کے اندر جس کی وجہ سے دین اسلام پھیلا ہے ان کا کیا نام تھا، یہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیں. مسلمان بہت بہت شکریہ. اس بات کو سوچ لے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو اب تک نبی آئے، اللہ کو یہ نام سب سے پہلے پیارا تھا کہ عرش کے اوپر جانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنے عرص گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جب اما ہوا کو آپ نے اللہ نے الگ الگ کر دیا تو دل میں خیال یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں جائیں، مجھے معاف کر دو. تبلیغ کرنا کیا ہے؟ تبلیغ دعوت ہے حضرت. سمجھیں مطلب مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ یہ تبلیغ محنت ہے، سنت واجب تو نہیں بتا سکتا تھا آپ کو. نہیں بتا سکتے. اس کے بارے میں خلاصہ نہیں ہوا ہمارے آپ سے آپ نے کس سے پوچھا نہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں پوچھا نہیں. تو یہ تبلیغ یہ نہیں بتا آپ کو کیا ہے. چلو خیر، جو ہمارے جو ویورس ہیں نا یہ باتیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ تبلیغ میں وقت لگانا ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، اور دوسری بات ہے کہ تبلیغ کرنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے یا مستحب ہے. یہ آپ ذرا کمنٹ باکس میں بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمدللہ. آپ کا نام؟ محمد عامر. محمد عامر، ماشاء اللہ. اچھا عامر بھائی، ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں سے اسلام کے متعلق. جی تو آپ کی اجازت تو بات کر لیں. ہاں جائز. چلیے ماشاء اللہ. اچھا مسلمانوں کی شروعات ہوتی ہے اور اسلام کی کلمے کے ساتھ میں، وہ سنا دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب ماشاء اللہ. اور اس کا معنی؟ نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. ماشاء اللہ. تعلیم یافتہ لگ رہے ہیں. جی. کیا پڑھے ہیں؟ میں وہ قرآن شریف ناظرہ ہوں اور بیشتر جبر 5 رسالے پڑھ رکھے ہیں اور تبلیغی لائن سے جڑا ہوا ہوں. بہت خوب ماشاء اللہ. یعنی کہ سونے پہ سہاگا. جی سونے پر سہاگا. بہت ہی یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ جہاں بھی اسلام کی جز بنتے ہو نا، جہاں سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہو، ہم ان تمام جماعتوں کو سپورٹ کریں. بالکل صحیح. جیسے ماشاء اللہ الحمدللہ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ ہے تبلیغی جماعت. بے شک. ایک بہت بڑا کارنامہ ہے مدرسے. بے شک. ایک بڑا کارنامہ ہے تبلیغ، یہ جو ہماری خانقاہیں ہوتی ہیں. جی مدرسے. جی بے شک. اور ایک بہت بڑا ایک سنستھا ہے کہ جو لوگ ہیں نا برائی کر رہے ہیں ان کے خلاف مستقل کام کرنا. اچھی ہے. تو جیسے ہمارا ماننا یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. بے شک. حق ہے اور سچ ہے. اسی کیا مثال ہوگی؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر ایک مسلمان ہوا یا غیر مسلمان ہوا، ہر ایک کو یہ چاہا کہ میرے ساتھ ہر ایک امت جو ہے جنت میں جانے والا بن جا. ہمیشہ جو ہے محبت کا پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑی قربانیں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. اور ان کے بعد جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانی ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں. ابھی میں 1 مہینے پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں ماشاء اللہ. حقیقت میں بڑا رونا آیا اور بڑا افسوس ہوا مجھے وہاں جا کے کہ واقعی میں بھائی ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہے، جو ہمیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماں کی گودوں ملا ہے جو ہم تک پہنچا دیا. بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے. بلکہ میرے مکہ اور مدینہ میں جانے کے بعد بڑا بس آنسو حقیقت ہے، بلکہ آ بھی نہیں رہے تھے، بڑی خوشک ہو گئے تھے. بڑی تکلیف جھیلی ان لوگوں نے بھائی، مطلب بڑا مجاہدہ جھیلا. ہر ایک چیز کو دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی، اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ خیمہ دیکھا، حضرت فاطمہ خیمہ دیکھا، ان کے اماں جان چچا جان سب کا جہاں خیمے، صحابہ کی جہاں غزوہ احد میں جو ہے شکست ہوئی تھی، 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی ہوئی تھی، وہاں تک گئے احد پہاڑ کے پاس تک. بڑی جو ہے قربانیاں دی ہیں. اچھا، اگر جیسے کہ آپ نے ماشاء اللہ بڑا ذکر کیا ہے ان کی قربانی کے متعلق، کیونکہ صحابہ کی قربانی کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہے. اور کیونکہ پیغمبر کا تھا جو کام تھا وہ تو ان کا اصل تھا. اصل کام کس کا تھا؟ نبی کا کام تھا. لیکن جو ان کے ساتھ میں لگ جاتے ہیں نبی کے ساتھ میں صحابہ، جی، تو ان کا بھی کام بن جاتا ہے. جی. تو آپ نے فرمایا، جیسے آپ کی بات میں بتاتا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے بعد یہ کام میری امت کرے گی. ایسا کیوں کہا ہے؟ کہ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، اچھا حکم کرنا، دوسروں کو برائی سے روکنا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ میری امت جو خیر کا کام ضرور کرے گی انشاءاللہ. ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو ہے خوشبو آ رہی کہ ہندوستان کے اندر سے خوشبو آ رہی کہ وہاں سے جو ہے دین کا کام شروع ہوگا. الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو قربانیاں ان لوگوں نے دلی سے دی ہیں، اپنا جان مال جو صحابہ نے اور نبیوں نے جیسے قربان دی، ان لوگوں نے بھی جو ہے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جست پہ بالکل کام کرا ہے اور دین ہم تک پہنچایا ہے. انہوں نے بھی کام کیا اور دین ہم تک، جو انہوں نے خواب دیکھے ہیں کہ جو ہمارا مرکز ہے دلی کے اندر، انہوں نے جب وہاں ایک منزل تھا، یعنی کچا تھا اس ٹائم میں جب حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے،
उस दौर में उनका ख्वाब ये था कि लोग उन्हें कहा करते थे, इलियास तो तुम्हारी जो है जिस्म के अंदर आपकी जो है जिस्म के अंदर भी वज़न भी जो 40-45 किलो है, और आप जो है अपने घर से माल को देने के बाद मज़दूरों को दीन सिखा रहे हो और दिहाड़ी दे रहे हो कि ताकि ये दीन जो है सब पूरी उम्मत के अंदर फैल जावे। कि मुझे इस बात का फ़ख्र है कि दीन से हर एक घर के अंदर, कच्चा पक्के घर के अंदर फैल जावे। माशाल्लाह। बड़ी दी है उन लोगों ने भाई। अच्छा माशाल्लाह, आपने बड़ी गहरी बातें की कि है ना, कुरान में अल्लाह फरमाता है इनके मुतालिक कि ना मुसलमानों की जान और माल को हमने ख़रीद लिया है जन्नत के बदले, जन्नत के बदले। ये बात साहब के सामने जब आई कि अगर सब कुछ जान लुटाने के बाद अपनी जान और माल इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो आपने फरमाया था कि इसके बाद जन्नत मिलेगी। तो आप साहब ने भी ये फरमाया था, कहने लगे अगर ये सब कुछ कुर्बान भी कर दें हम तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब कुछ कुर्बान करने की जन्नत के लिए खरीदार हम। अच्छा, उसी नबी के ऊपर जिस नबी ने सारी उम्मत के लिए इतनी जद्दोजहद कोशिश मेहनत की है, उसी नबी पर बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। गलत है, पता नहीं है। अगर इंसान मुसलमान इस बात को सोच ले कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो अब तक नबी आए, अल्लाह को ये नाम सबसे पहले प्यारा था कि अर्श के ऊपर जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतने अर्श गुजरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को जब अम्मा हुआ को आपने अल्लाह ने अलग अलग कर दिया, तो दिल में ख्याल ये आया कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में जाए, मुझे माफ़ कर दो। तो आपने अल्लाह ने फरमाया था, ए आदम अगर तू ये दुआ पहले मारे तो मैं तू कभी का माफ़ कर देता। ये इंसान मुसलमान जा गुमराह हो रहा है, दुनिया के चक्कर में लग रहा है, फिक्रों में लग रहा है। लेकिन मतलब हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, मुसलमान तो ये गफलत में है जी, लेकिन ये ना ये मुनकर नहीं है। जी जी, मुसलमान क्या है, गफलत में तो है, गफलत में। लेकिन मुसलमान मुनकर नहीं है कि नबी का इनकार नहीं करता है, नबी की कुर्बानी का इनकार नहीं करता है, और जो उन्होंने हमारे लिए दुआएं मेहनत कोशिशें की है उसका बिल्कुल कोई मुसलमान इनकार नहीं करता है। जी जी जी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे जाति के लोग हैं, वो अक्सर उस नबी पर बहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। देखो वो क्या है, यो उन लोगों को पता नहीं है कि उन लोगों ने जो है हमारे लिए क्या कुछ करा है, क्या नहीं करा है। ये तो मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, जो मुसलमान हैं हमारे उम्मत मुसलमान हैं, ये अपने अगर सही तरीके पर आ जाओ तो इंशाअल्लाह दूर गैर भी जाए, इंशाअल्लाह ईमान ले आवे। मेरी कोशिश रहे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो किसी की मेहनत को लेकर जाए ना, अपने बिस्तर लेकर घर से निकलते हैं कि पूरी उम्मत के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगी कि मेरे हर एक उम्मती जन्नती में जाने वाला बन जाए, उसकी फिक्र लेकर हम घर से निकलते हैं, हमने बैग बिस्तर लेकर। अच्छा, तबलीग में जाना सबके लिए ज़रूरी है? नहीं, फिर यो अल्लाह ने आधा काम शुरू में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से कुर्बानी चली है, तबलीग के लिए चली है। उसके बाद जो है हमारे घरों के अंदर अल्लाह ने आलिमों को पैदा करा, हाफिज़ों को पैदा करा। ये अपनी जगह सही है, और तबलीग वाले जो अपना काम कर रहे हैं वो भी सही है। दोनों एक ही है, मतलब मेहनत एक ही है, वो तरीका अलग है। वो मदारिस से मेहनत कर रहे हैं और हम घर घर जाकर मेहनत कर रहे हैं। नहीं, मतलब सबके लिए ज़रूरी नहीं हो सकता है। नहीं हो पक्का है। अच्छा चलिए पूछेंगे आपसे, तबलीग का जो काम है वो करना क्या है? उसमें असद हमारे जो आलिम है, मेरा आलिम के साथ वक्त लगा, ख़ास ये फरमाया, कहने लगा तबलीग जो है पहले अपने लिए है, मेहनत पहले अपने लिए है, अपने ईमान को जो है अपने अखलास को जो है बना लो। एक आलिम ने मेरे से सवाल करा था, आलिम थे, मैं वज़ू कर रहा था, आज वो दिन भूला नहीं हूँ मैं। तो वो उन्होंने फरमाया, भाई मोहम्मद आमिर बता ईमान क्या चीज़ है? तो मेरी ज़बान से की बात निकली तकवा, जो हदीस भी है। जी, ईमान ही है कि इंसान को अपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने ईमान को जो है ऐसा बना लो, अपनी ज़बान और दिल को, कि वो जन्नत का वादा मुझसे साथ कर रहा है जो अपने अखलाक को बना लेगा। यही ईमान है। अच्छा, ये तो ये हम पूछ रहे हैं, हमें पूछे तबलीग करना क्या है? तबलीग दावत है हजरत। नहीं, आप समझे नहीं, मतलब मुस्ताहब है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है? ये तबलीग मेहनत है, सुन्नत है, वाजिब तो नहीं बता सकता था तुम आपको। अच्छा, नहीं बता सकते? इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ हमारे साथ। आपसे आपने किसी से पूछा नहीं? नहीं, इसके बारे में पूछा नहीं। तो ये तबलीग ये नहीं पता आपको क्या है? चलो खैर, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, ये बात हम उनसे पूछेंगे कि तबलीग में वक्त लगाना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, और दूसरी बात है कि तबलीग करना फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है या मुस्ताहब है। ये आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं, भाई इंशाल्लाह बात ज़ार रखते हैं। तो बहरहाल हम ये पूछे थे, जैसे सारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम आए, क्या ये सब मुसलमानों के लिए आए? नहीं, सबके लिए है, सबके लिए आए। सबके लिए है। तो हमारे नबी को एक ख़ास कोई लक़ब दिया गया? लक़ब दिया गया। क्या? ये दिया गया, अभी आप सबने पहले फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया मट्टी से, उसके बाद जो है अर्श पर दो ही नाम थे, अल्लाह का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आपकी अपनी ज़हन है, थोड़ा सा कड़वा और सवाल कर लेते हैं, कर लें? हाँ कर लो। एक सवाल हमारा ये है, दुनिया के अंदर इस वक्त में जो सबसे तेज़ी के साथ धर्म फैल रहा है वो कौन सा है? यहूदी अपनी जान लगा रहे हैं इसमें। नहीं, पूरी हम ये पूछ रहे, दुनिया के अंदर सबसे तेज़ी के साथ धर्म फैलने वाला वो कौन सा है? दुनिया के एतबार से देखा तिजारत चल रही है। नहीं, धर्म धर्म धर्म। मजहब सबसे बहुत सारे धर्म है दुनिया के अंदर भाई। यहूदी मान लीजिए, आप ईसाईयत मान लीजिए, जी। और दूसरे दिगर धर्म मौजूद भी हैं। अब हम तो अपनी नज़र से देख कर जाए भाई, हम जिस काम में लगे हमें तो वही दिखेगा तबलीगी। मैं तो ये जवाब दूंगा भाई। अच्छा, वो आपकी तबलीग है ना? जी। अच्छा, चलिए खैर, ये अपना अपना नज़रिया होता है कि इंसानों का है ना, वही दिखता है जो उसके अंदर होता है ना? जी जी जी। हम तो जहाँ पर जिस बिस्तर ठाक जब निकला हमें तो एक नज़र ये रहा, हमारे तो कोई दूसरी नज़र रहती नहीं। अच्छा, जो सबसे पहले जो इस्लाम पैदा हुआ ये कहाँ हुआ था? ये सबसे पहले ज़रा जो है शुरुआत जो आदम अलैहिस्सलाम से हुई तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन लोग यूँ कहते हैं कि इस्लाम जो धर्म है जी वो तकरीबन 1415 साल पहले आया जी, है। 14.5 साल पहले। ये सही है बात? बस सुनने में हजरत से ये सुना भाई, आगे कह नहीं सकता। तो हाँ, जो क्या नाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये 15 साल पहले आए थे। ये ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे। और आप आदम जो थे वो कब आए थे? वो आदम सबसे शुरुआत जो आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। अब उनकी अगर सर्च करा जाए तो शायद मैं ना बता पाऊँ, कोई बड़े आलिम मुफ्ती बता सकता है कितने अर्स गुजर चुके हैं। अच्छा, उन्हें कितना वक्त हो गया? हाँ जी। तो सबसे पहले आदमी थे वो, आदम अलैहिस्सलाम। और वही मुसलमान थे। जी। तो फिर इस्लाम धर्म 15 साल पहले कहाँ आया है? नहीं, पहले नहीं आया, मैंने ये तो बात कही नहीं जरा। नहीं, हम ये कह रहे 15 साल पहले जब आप बताते हैं, लोग बताते हैं, जी, जी। तो 15 साल पहले क्या है? तो आदम के ज़माने से आया है। किसी बच्चे से सवाल करोगे आप छोटे से कि भाई नबी आ करते थे, दावत दिया करते थे, और ईमान को वो इस्लाम को जिंदा क्या करते थे, नबी जाया करते थे, दिन फिर ख़त्म हो जाया करता था। अभी और वक्त अगर लगाया जा तो भाई मैं तो बता नहीं सकता इसके बारे में कितना वक्त गुजर जाए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के बीच में। नहीं, लोगों का मानना ये है कि ना जो इस्लाम बाजू उम्र नबी की उम्र है, नूह अलैहिस्सलाम में 14 साल हुई है, बाजो नबी की जा 200 साल हुई है, किसी को 100। अच्छा, 900 तो उनके लगाई लीजा जी। हज़रत 13.5 साल। 13.5 साल तुम्हें, जी। और प्लस 600 साल आप बता रहे हैं उनके हज़रत ईसा सलाम के बाद, जी। और तकरीबन उससे पहले इब्राहिम है, और जी तो ऐसे तो है कि ना कई हज़ार साल हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे ऐसे तो। कोई गुना नहीं है, मैं तो पहले कह रहा था। तो वो सब मुसलमान थे, सब मुसलमान। और सब लोग कह रहे हैं कि इस्लाम जो धर्म आया वो 14 साल 15 साल पहले है। ये क्या है? मैंने तो पहले कहा आप सभी अगर पूरा गुना करिए इस्लाम को तो वो पूरी है, बड़ा आलिम ही बता सकते हैं भाई हजरत इसके बारे में। तो चलिए माशाल्लाह, भाई ने गहरी गहरी कुछ बातें बताने की कोशिश की है, और कुछ नहीं बता पाए हैं। अगर किसी भाई को पता हो तो ज़रूर बताना। अच्छा, आखिरी हमारा सवाल आपसे ये रहा कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो अंदर जो इस्लाम आया है, वो पहले मुसलमान कौन था? सबसे पहले मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर। जी जी, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैला है। भाई अगर देखा है तो मक्के से जो है और मदीना से जो साहब आए वहाँ से। तो मैं उनका नाम पूछ रहा हूँ। नाम तो ज़रा तो बता नहीं सकता नहीं, क्योंकि कुछ कब्र जो है सरन शरीफ के अंदर मैंने उस टाइम मैंने इस काम में लगा हुआ था, मैं नाम नहीं बता सकता ज़रा। तो जो मतलब हिंदुस्तान के अंदर आने वाला पहला शख्स था जो मुसलमान, जी जी, 5 साहब भी थे, 4-5 साहब भी जी। हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है, जी जी, उसका आपको नाम नहीं पता? नाम नहीं मालूम। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, मिलके कैसा लगा? माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखा है? बहुत अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जो हमारे जो व्यूवर्स आपको देखेंगे जी जी। उन्हें क्या पैगाम दोगे? किन्हें जी? जो हमारे देखने वाले आपको होंगे। जी जी भाई, मैं उनसे ये पैगाम देना चाहूँगा ताकि हर एक मुसलमान को, छोटा हो बड़ा हो, बहन हो माँ बहन हो, जो भी हैं, हर एक चीज़ का हमें इस्लाम का हर एक जुज़ पता होना चाहिए। हमारे नबी के दादा दादी हर चीज़ का जो भी दीन के मुतालिक चीज़ है, हर एक मुसलमान भाई को हर चीज़ का पता होना चाहिए, ताकि हम कोई हमारा सवाल कर बैठे भाई इसकी ये क्या चीज़ है तो उसका अपने आलिम से रब्ता करके जाए, पता होना चाहिए भाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा आखिरी सवाल व्यूवर्स से हमारा ये रहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर जिसकी वजह से दीन इस्लाम फैला है, उनका क्या नाम था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।